Saket Kumar, the respected Assistant Professor of Department of Political Science, RDS College, Muzaffarpur, Bihar. So before handing over the stage to him, I would like to exchange a few words on the topic. So, the part 4 of the Indian Constitution deals with the directive principles of state policy. The provisions contained in this part, from Article 36 to 51, cannot be enforced by any court, but these principles are fundamental in the governance of the country. And it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. The concept of directive principles of state policy was borrowed from Irish constitution, while the most of the fundamental rights are negative obligations on the state. DPSPs are positive obligations on the state. Now, to further proceed with the topic, I would invite Saket sir to take over the stage. Please, sir. Thank you, Anjali. So, first of all, good evening, everyone. So, respected teachers, students, and listeners. So, my today's topic is directive principle of state policy. As you all very well know, that the topic is directive principle of state policy, and as you as you are already aware with my introduction that I am Dr. Saket Kumar, Assistant Professor of Political Science, RDS College, Muzaffarpur. So, let's come to the topic. So, let's discuss something about the constitution that basically directive principle of state policy is the part of the constitution. So constitution of India is basically derived from the different constitutions of the world. It is beautifully designed and it consists of all the mm, all the that different yeah, different topics, different issues that suits to the requirement of our political system. So the directive principles are contained in part 4 of the Indian Constitution, and it is from Article 36 to 51. So these provisions from Article 36 to 51, the Article 36 says that it asks for the economic and economic and educational upliftment of scheduled caste and scheduled tribes, and Article 37, which says that the enforcement of the court, but as regarded as the fundamental of the government of the country, and state would well be applying to the making of the laws. So as far as the directive principle of state policy is concerned, the state shall secure social order for the promotion of people's welfare. So the directive principle of state policy is basically that principle that promotes the welfare state. Basically, the welfare state is that state that takes care of the people in the situation when there is any such type of problem like any ailment, any disability, or any accident. Then the state takes care of the citizens. That state is called welfare state. So the directive principle basically concerned with the creation of a welfare state. So certain principle of policies to be followed by the state. It is basically the collection of certain principle of policies that to be followed by the state. So it also guarantees equal justice and legal aid of the people that are unable to support their judicial expense due to their financial status. So it is basically in the case of the criminal cases. The criminal cases can be carried on or is financially sound, and then the state supports the individual to avail legal aid to support the legal cases. And organization of Panchayat is considered under Article 40, which is basically the creation of Panchayat Raj institution like Mahatma Gandhi regime. So it is basically the direct principle is such a principle which promotes the social and economic justice of the citizens of the country. So it says that direct principle of state policy is non-justice as compared to the fundamental right to justice. It says that
when the fundamental rights are not guaranteed, one can oppose the court, and direct principles are not guaranteed, one cannot oppose the court. So it is the basic difference between fundamental rights and direct principle. So the Panchayati Raj was the dream of Mahatma Gandhi to create a decentralized political system in the country, and to create a Ram Raj in the Indian political system, and such a society that the village Ram Raj will be established, can be established in Indian political system. So it was the dream of Mahatma Gandhi, and it is forced by the provision of the direct principle of the state policy. Another issue of the direct principle of state policy is that provision of just and conditions for work and mental relief. These are another provision that is included in Article 42. The previous one was in Article 40 that talks about Panchayati Raj institutions, and then the provision in the just and conditions of work and mental relief, that is in Article 42. It says that the state can make provision for securing just and human conditions of work for mental relief. So it also gives protection to the labor force of the country, such that they can avail just human condition, means the condition of work and the situation in their required work should be human, and the condition of work should be such that it not be disadvantage to the individual. So, and maternity benefits are also given to the female citizens of the country, the women section of the society. Next is yes. You students are basically that is in India also. Okay, really. तो इसमें ये आ जा रहा है डायरेक्टली बेसिकली ऐसा प्रिंसिपल है जो कि नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल कहने का मतलब ये हुआ कि इसलिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। न्यायालय में नहीं जा सकते कहने का मतलब कि अगर डायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट लागू नहीं करता है तो हम स्टेट कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट से डिमांड नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू कीजिए ही, बिकॉज देयर आर सर्टेन कॉन्स्ट्रेंट्स में कुछ हमारे आर्थिक और ये इकोनॉमिक और सोशल कॉन्स्ट्रेंट हमारे पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम में, जिसके कारण डायरेक्टली प्रिंसिपल को लागू नहीं किया जा सकता। तो उस कारण से हम कोर्ट को ये कोर्ट नहीं कर सकता है। वी कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट द एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी, जबकि फंडामेंटल राइट्स एज कंपेयर टू डायरेक्ट प्रिंसिपल उसको अगर लागू नहीं किया जाता तो हम कोर्ट की सजा में जा सकते हैं, बिकॉज दे आर बेसिक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि वो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज दैट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल इन एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो उसको लागू करना जरूरी हो जाता है, इस कारण कोर्ट उसको लागू करवाता है। एंड इट इज बेसिकली पॉलिटिकल इन नेचर। द फंडामेंटल राइट इज बेसिकली पॉलिटिकल in nature, so it can be easily enforced, and there is less requirement of economic resources concerned in the enforcement of fundamental rights. Yet it is very important, very crucial, लेकिन उसमें economic resources का application उतना नहीं है जितना कि political will का requirement है, political influence का requirement है, इसलिए कोर्ट इसको enforce कर देता है। लेकिन directive principle on the other hand, it requires the social and enforcement of social and economic justice। तो social और economic justice को enforce करने के लिए there is requirement of economic resources, and as we all know that India has gained independence in 1947 only, just hardly it is a matter of last 70 years or so that we have acquired freedom. So in such a short span of time, इतने कम समय में हम लोगों के लिए इतना रिसोर्स, मतलब इसको कहा जाए कि इतना रिसोर्स हमारे पास नहीं है कि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम लागू करें। जैसा कि कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में ये बताया भी है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट्स ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसमें बहुत सारा टसल भी चला है। डिफरेंट केसेस में इसमें निर्णय भी दिया गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्रायोरिटी दी जाए या
फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी दी जाए। लेकिन अंत में निर्णय ये लिया गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी जुडिशियल नेचर है। ये नहीं कहा जाए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉट जुडिशियल नेचर, इट इज येट जुडिशियल, इट इज ऑल्सो having judicial character, but the condition is that the state should have resources to implement the directive principle। अगर हमारे पास वो resources हैं और हमारा state उसको लागू करने का इच्छुक है तो there is no, मतलब उसके सामने कोई समस्या नहीं है या उसको लागू करने से रोका नहीं जा सकता। इट इज जुडिशियस टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू, बट दिस इज नॉट आवर राइट, दिस इज नॉट आवर राइट। ये हमारा अधिकार नहीं है कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिमांड करें, उसको लागू करवाएं, कोर्ट की शरण में जाएं। लेकिन इस तात्पर्य ये नहीं हुआ कि हम ये कह दें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉन जुडिशियल, नॉन जस्टिसिएबल कह सकते हैं, लेकिन नॉन जुडिशियस हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसको भी लागू किया जा सकता है प्रोवाइडेड कि हमारे पास रिसोर्सेज हो, हमारे पास संसाधन हो, हमारा पॉलिटिकल विल उसको लागू करने के लिए इच्छुक हो। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो कुछ बातें को हमने डिस्कस किया था, तो अभी कुछ बातें को डिस्कस किया जिसमें इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड की बात की थी। इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड के लिए ये बात कही गई थी कि न्याय एक ऐसा अवधारणा, एक ऐसी जरूरत है, मानव जीवन की ऐसी आवश्यकता है जिसके लिए गरीब और अमीर का भेदभाव, गरीब और अमीर की खाई किसी को न्याय प्राप्त करने के लिए बाधा नहीं बननी चाहिए। तो उस कारण से भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत इस चीज का प्रावधान किया गया कि फ्री लीगल एड क्रिमिनल केसेस में हर एक सिटीजन को प्रोवाइड किया जाएगा इफ ही इज इनकेपेबल टू बियर द लीगल एक्सपेंस। तो इस तरह से फ्री लीगल एड को भी प्रोविजन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किया गया। और उसके बाद organization of village panchayat, this is very important because I personally is very influenced by Mahatma Gandhi's personality। तो महात्मा गांधी was a very, you say, बहुत बड़े विचारक थे और उन्होंने भारत के लिए एक बहुत बड़ा सपना देखा था, और उन्होंने जो भारत का सपना देखा था उसको ग्राम पंचायत के थ्रू और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उसको, मतलब उसको साकार करने का हमारे भारतीय, मतलब ये नीति निर्माताओं के सामने मॉडल रखा था कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ही भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और भारत का जो स्वरूप होना चाहिए, जो भारत का भविष्य का नक्शा होना चाहिए, वो पंचायती राज के नक्शे के दिन चल के ही अचीव किया जा सकता है। तो उसके लिए उन्होंने आर्टिकल 40 में गांधीयन प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया। गांधीयन प्रिंसिपल के बेसिस पे आर्टिकल 40 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की ये का प्रावधान रखा गया कि अगर हमारे पास रिसोर्स होगा, मतलब इसको लागू करने की बात आर्टिकल 40 में की गई। उसके बाद किया गया प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी बेनिफिट। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा थोड़ी देर पहले की है। लिविंग वेज एंड वर्क फॉर वर्कर्स, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स की भी वकालत की गई है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कहा गया है कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और एनी अदर वे टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट एंड अंडरटेकिंग ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड ऑन एनी इंडस्ट्री। इसके द्वारा ये ओनरशिप की बात की गई, पार्टिसिपेशन इन द अफेयर्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो इससे जो है मालिकाना हक, जो मजदूरों का जो स्वामित्व होगा, जिसको ये लैंड, लेबर और कैपिटल में जो लेबर फोर्स का जो होगा वो कैपिटल पे और लैंड वाज द सोर्स ऑफ ये इनकम इन द प्रीवियस सोसाइटी, बट अब क्या है, अब तो इंडस्ट्रीज है, तो इन द मैनेजरियल अफेयर्स में वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन हो, इस चीज को सुनिश्चित करने की बात कही गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। आगे कहा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड में साबानो केस इंपॉर्टेंट है। अगर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए, जिसकी वकालत आर्टिकल 44 में की गई है, इसमें कहा गया है कि द स्टेट शैल इंडिवर टू सिक्योर सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे देश की सीमाओं के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हॉट डिस्कस टॉपिक है, इस पे बहुत लंबा डिबेट किया जा सकता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा
भारतीय समाज के अंदर एक रूपता लाने का प्रयास करने की वकालत की गई है, बट इट इज अ डिस्प्यूटेड टॉपिक इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इन इंडियन सोसाइटी। ये भी अभी डिस्प्यूटेड मुद्दा बना हुआ है, इस पे अभी बहुत काम किया जाना है, इस पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी में भी कंट्रोवर्सी है, तो इसको भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। The provision of free and compulsory education for children. This is very fundamental and very essential for the future of the nation, because children are the future of the nation, and for the socio-economic development of the society, education is very essential. तो इसका भी चर्चा किया गया है। इसमें कहा गया है, the state shall endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of the constitution free and compulsory education to all children until they complete the age of 14 years. That was included under article 45. लेकिन 86th amendment act 2002 में ये कहा गया, the states are required to provide free and compulsory education to all children between the age of 6 and 14. 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ये 86वां संविधान संशोधन में 2002 में कहा गया। इट इज ऑल्सो बिग स्टेप। तो ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का नाउ वेरी which is being implemented throughout India. मिड डे मील स्कीम को भी इसके सब्सिडरी बना करके इसको प्रमोट किया जा रहा है। आगे कह रहा है, protection of education, economic interest of scheduled castes and scheduled tribes and the other weaker section. ये भी बहुत बेसिक है, because the ये deprived section of the society also needs to be ये उनको भी ये चैनल मेन स्ट्रीम में लाने की आवश्यकता है, so that they can also stand the rest of the society. समाज के साथ जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, उनको भी समाज के साथ ला करके खड़ा करना हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की जिम्मेवारी है। तो उसमें भी रिसोर्स की आवश्यकता है, जिस वजह से इसको भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला गया है। इसमें कहा गया है कि the state shall promote with special care the education and economic interest of the weaker section of the people, and in particular the scheduled caste and scheduled tribe, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. This is said in Article 46. So education is the means to escape the social exploitation. Social exploitation से बाहर निकलने का एक ही माध्यम है education. So the provision of and promotion of education of the scheduled caste and scheduled tribe, and the promotion and provision of economic interests of the scheduled tribe and scheduled caste and other weaker sections is also very important, and it is discussed in डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसकी चर्चा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में की गई है। आगे कहा गया है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ इशू को भी डिस्कस किया गया, न्यूट्रिशन लेवल की भी बात की गई। दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन आर्टिकल 47, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब जितने भी सामाजिक आर्थिक पहलुओं की चर्चा की जा सकती है, किसी को भी नहीं छोड़ा गया है, सारे पहलुओं की इसमें चर्चा करने का प्रयास किया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसको आर्टिकल 48 में डिस्कस किया गया है, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन आर्टिकल 48 को बाद में जोड़ा गया है। उसके बाद कहा गया, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। राष्ट्रीय महत्व के जितने भी धरोहर उनको प्रोटेक्ट करने की बात भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कही गई है। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कही गई है। इसमें कहा गया है, the state shall take steps to separate the judiciary from the executive for in public service of the state. This is discussed in Article 50. तो इस तरह से ये सारी बातें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डिस्कस की गई है। इसमें कहा गया है कि the state shall endeavor to promote international peace and security of foreign relations, foreign policy को भी इसमें डिस्कस किया गया है। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज आल्सो अ इशू कंसर्निंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें कहा गया है कि प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन नेशंस, foster respect for international law and treaty obligation in dealing with other peoples, encourage settlement of international dispute by arbitration. This is discussed in Article 51. So, to promote international peace and security,
and to promote friendly relations among nations is also one of the important topic that is discussed in directive principle of state policy, right? तो इस तरह से ये बातें चर्चा की गई हैं फ्रॉम 26 टू आर्टिकल 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में ये सारी बातें की चर्चा की गई हैं। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते वक्त व्हाट द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव इन देयर माइंड, उस समय फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के दिमाग में क्या क्या बातें थी, उसमें ये बात कही जा रही है कि द फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी वाज इंटरेस्टेड टू फ्रेम फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोथ to be designated as fundamental rights. The subcommittee had numerous types of rights, social, political, and economic. To select from having classified it into two categories, the subcommittee marked one category as enforceable in the court of law and other non-enforceable. एक कैटेगरी को enforceable बनाया गया, दूसरे कैटेगरी को non-enforceable बनाया गया, जिसकी चर्चा की गई है। पहले भी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि एक enforceable बनाया गया, दूसरे को enforceable बनाया गया। ये बातें संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में पहले से थी। तो जिस चीज को enforceable बनाया गया उसको फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी में रखा गया, जिसको non-enforceable बनाया गया उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के श्रेणी में रखा गया। आगे कह रहा है कि इसी क्रम में जो फंडामेंटल राइट्स है उसको आगे रखा गया और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनको बेटिंग में रखा गया कि प्रोवाइडेड कि हमारे पास इकोनॉमिक और ये अदर रिसोर्सेज अगर अवेलेबल होंगे तो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे भी काम करेंगे। दिस आर सर्टेन प्रोविजंस दैट शुड बी वर्कड ऑन इफ वी हैव रिसोर्सेज फॉर दैट पर्पस के लिए अगर हमारे पास रिसोर्सेज होगा तो हम उसमें भी काम करेंगे। ये बातें उन लोगों के दिमाग में थी। आगे कह रहा है कि रिप्रेजेंटिंग द सोशो इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पीपल एस्पिरेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर मेड नॉन जस्टिसेबल टिल द टाइम इट कुड बी मेड जस्टिसेबल। दिस मींस दैट द कोर्ट इंटेंडेड वुड नॉट फोर्स द स्टेट टू इंप्लीमेंट दैट प्रिंसिपल बट दे वुड नॉट गो अगेंस्ट देम। मतलब कोर्ट उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वकालत नहीं करेगा, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उसको रोकेगा नहीं। इसलिए इसका it is not that judicial justiciable but still it is having judicious nature। ये judicious nature का है लेकिन non justiciable है, क्योंकि कोर्ट उसको लागू करने के लिए कह नहीं सकता, लेकिन अगर लागू हो रहा है तो उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा, रोकेगा भी नहीं। ठीक है, इसमें और बातें कही जा रही है कि former as the law, the present law of the present and latter as the law of the future। जो fundamental rights है, this is the law of the present and the directive principle is the law of the future। Happily, the courts have settled down on the position that the directive principle do constitute the relievance of fundamental rights। ये बातें कही गई हैं। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल के फीचर की अगर बात की जाए तो the idea of directive principle of state policy is a part of constitution is not very old, so it has been adopted। इसका अगर ये origin की बात की जाए तो it has been originated from the Irish constitution of the Irish state, जो स्पेनिश से ओरिएंट होकर फिर स्पेनिश से लेकर आयरिश स्टेट से 1937 में लिया गया। So we are इसके बारे में स्टेटमेंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कि इट इज अ नॉर्मल फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में भी कहना है कि इट इज अ नॉर्मल फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे नॉर्मल मतलब क्या कहा जाए, सबसे उत्तम गुण है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, नॉर्मल फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो के बारे में मेरा ये कहना है इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल को सर्टेन कैटेगरीज में भी कैटेगराइज किया गया है, जैसे सोशलिस्ट नेचर का भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, गांधी नेचर का भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, लिबरल इंटरनेशनल नेचर का भी गांधी प्रिंसिपल है। दे आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। ऐसा कुछ कैटेगराइजेशन मतलब किया गया है बेसिस ऑफ द नेचर। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐसे हैं जो सोशलिस्ट नेचर के, कुछ गांधीयन ओरिएंटेशन के हैं, कुछ लिबरल इंटरनेशनल कैरेक्टर के हैं। सो ऑन दैट बेसिस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव बीन कैटेगराइज्ड अंडर these heads। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल की बात की जाए तो आर्टिकल 40, 43, 46, 47, 48 आर अंडर गांधीयन कैटेगरी
Under socialist category, Article 38, 39, 39A, 41, 42, 48, and 43 and 43A are under socialist category. उसी तरह liberals की अगर बात की जाए तो Article 44, 45, 48, 48, 49, 50, 51. These are under the liberal category. तो ये categorization हुआ directive principle का. If we directly jump to the fundamental rights and directive principle and the relative positions, so इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा मैंने शुरू में ही थी. उसमें ये है कि इसमें कह रहा है कि directive principle have to work within the framework of fundamental rights. And yet another case, M.H. Qureshi and the state of Bihar, the Supreme Court maintained that although the directive principles conform to the run subsidy to the chapter as fundamental rights, would not reject the directive principle altogether. The directive principle को reject किया जा सकता है. It has to run subsidy to the fundamental rights. इस बात में उसको चेंज किया गया और अल्टीमेटली एट द लास्ट स्टेज इनका यह कहना था मिनर्वा मिल केस में कि मिनर्वा मिल केस ऑफ 1998 सुप्रीम कोर्ट रिवाइज्ड द पोजीशन making direct principle subordinate to fundamental rights. However, the Supreme Court in the Minerva Mill case regarded both fundamental rights and directive principle complementary. Complementary means एक दूसरे का पूरा इसको बना दिया गया, declare कर दिया गया. One of the less important than the other, and both essential part and the basic part and the basic structure. इसको basic structure का part दोनों को कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिनर्वा मिल केस. तो ये कहा गया इसके बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. तो इसके बारे में कहा गया कि इट हैज बीन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लेबर के इंटरेस्ट में बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंटरेस्ट लेबर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एक्ट और लाए गए सरकार का पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट, बहुत सारे चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट, बहुत सारे एक्ट लागू किए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द लेबरर्स. उसी तरह इंटरेस्ट ऑफ वुमेन मैटरनिटी लीव और बहुत सारे एक्ट है. उसी तरह प्रमोशन ऑफ कॉमन की बात की जाए तो मिनिमम प्रोग्राम रिलेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम का सरकार है. उस तरह उसी क्रम में अगर बात की जाए तो ये 1991 को इट हैज बीन डिक्लेयर्ड सोशल जस्टिस डिक्लेयर किया गया. इसके बाद अब टाइम मेरे ख्याल से 3 मिनट बचा है. 3 मिनट में इसको कंक्लूड किया जाए तो ये कहा जाएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल मैनिफेस्टो ऑफ आवर आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव. हमारे आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव का मैनिफेस्टो है व्हिच कैन बी अडॉप्टेड, व्हिच कैन बी सेड दैट इज द नेशनल मैनिफेस्टो. राष्ट्रीय मैनिफेस्टो के रूप में इसको अडॉप्ट किया जा सकता है बिकॉज़ ऑल द पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में आती है मतलब निष्पक्ष को किसी भी आइडियोलॉजी की हो इट कैन अडॉप्ट डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज ए मैनिफेस्टो. उसको मैनिफेस्टो का पार्ट बना सकती है क्योंकि ultimately it is judged on the grounds of the performance in accordance with directive principle. In accordance with directive principle because directive principles are positive in nature, whereas the fundamental rights are negative in nature. Directive principles are positive in nature और जब positive काम करते हैं तो इसका positive result निकलता है. So it is going to be benefited in the next coming election and people will vote in favor of that political party because in accordance with the directive principle of state policy. So ये हमारे वोट कार्ड के अनुसार बनता जितना ज़्यादा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो कर बिकॉज इट इज बेसिकली पॉजिटिव इन नेचर. तो वही कहा जा रहा है कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि it is a moral process of the authorities of the state. और इसके बारे में हमने कहा है was a social revolution. From the social revolution की बात यही है कि अस्तित्व का मतलब social revolution और लास्ट में कंक्लूड किया जाता है कि the ruling party irrespective of the political ideology has to recognize the fact that these principles are intended to guide laws permanent in its legislative and executive act. जो कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी का हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल will always act as general laws guide in its
legislative and executive branch. उसके legislative और executive branch में directive principle of state policy will always act as a friend philosophy guide. So basically sum up किया जाए that principle will always be positive and it is always we will be always looking forward to see our nation progressing and implementing that principle of state policy as to the maximum limit in proportionate to the economic growth of the nation. यही हम आशा करते हैं कि देश ज़्यादा तरक्की करे और डायरेक्टली स्टेट पॉलिसी को ज़्यादा से ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट करने की क्षमता हो और इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और डायरेक्टली पॉलिसी के साथ साथ हम अपना मतलब समझ सकते हैं स्टेटमेंट और अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं. I hand over that to Anjali. Thank you, sir. It was a wonderful lecture. So, sir has made us very well understand the direct principles of state policies, its objectives, and their main articles. He has really made us understand that BSP lays down a comprehensive program for social and economic development. The success and failure of legislation and executive could be judged on the usage of BPSP. There are no rules and sanctions behind them. The PSPs can be used to verify the constitutional validity for some of the laws. And with this, I thank you, sir. And now there is a question. If someone has any question, please raise it, sir. Guys, if anyone who have any questions, please do not please also tell this. Good evening, sir. So, I very one this was on this direction. Thank you very much for inviting us. I just have a question in my mind. Don't you think the directive is also this cycle now? And it's high that they are materialized or quantified in the form of fundamental rights. Because like we see in the past also, the free education when it was kept under the realm of the directive principles, then they were not being implemented that seriously. But the moment it became a fundamental right under Article 21A, now it has become mandatory and it has become binding obligation of the state to implement it in full force and spirit. So don't you think that it's high time that India has achieved India has already also 70 years of independence. So it shouldn't phase why the elected principles must be converted, must be transformed into fundamental right so that it makes binding on the states to realize these principles into. That's my question to you. Thank you very much. And thank you once again, Dr. Vikas and Dr. Rajani sir, for this platform, which is going to be a very great brainstorming and a great journey platform for all of us. Thank you so very much. So, as Ara has asked, that we have attended some limits such a position that is directed to convert fundamental rights. So, this needs to be seen in different ways and from different angles and with different with the different viewpoints and the knowledge of different disciplines. So, if we see the present scenario, the economic growth and economic rate and the present COVID situation, what was the growth rate, what was the present economic status of the country, we are not in a position to implement directly some of the policies can convert the fundamental rights. This is the present scenario. But as far as converting directly some of the state policies in fundamental rights, that can be done by creating employment and making that such a very rigid and very not conducive as and complementary and
appropriately the what we say employment scenario of the country. तो इसलिए employment भी काम करना होगा, tax structure भी काम करना होगा, और जो developed countries हो रहा है और जो framework political systems का economic framework का उसको भी change करना पड़ेगा, क्योंकि even in this era here the mindset of most of the population is living in, you say, what you say, the religious cultural mindset is dominant over economic and political development mindset. आप religious cultural mindset ज़्यादा prevailing है उनके दिमाग में, ज़्यादा political economic development of the country और the main concern of the most of the population. I majority of the population that can be used to you say to convert the direct to fundamental that can contribute by contributing the efforts by which can be done by giving the government can be done by shifting the political, social, and economic structure of the country. बहुत सारा shift करना पड़ेगा, बहुत सारा modification करना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत adaptability चाहिए. तो हो सकता है at present नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए political tolerance, बहुत सारी politics को mass level पे adapt करने की जरूरत है. With these words, I think I hope you understood, but this doesn't seem possible because there are certain political what conflicts and political problems within the country that will not make them possible and continue to happen. So with that, thank you, Dr. Sakit and Dr. Keita Ramaya, Uttarakhand. Thank you so very much. Thank you, Tina, for asking such a wonderful question. In fact, I would also like have a word on this that we really think for ethics in relation of the privacy and fundamental rights in UPSP, the whole have evolved strongly. It has said that strongly harmonization. It has said that fundamental rights and UPSPs are supplementary to each other and they constitute like the integrated whole. So when we say that as an integrated whole, first thing that we think in it we have seen that there are two sides. One is policy cell and the other is the cell. So always there are two sides. What is actually there and what actually we want to do. So India is on the phase of what we want to do. And as per my view that it is presently not possible to implement fundamental rights because of some of the obligations which the state is not able to follow at that time. So thank you. And any other question anyone want to ask, please? Anyone, please? सर मेरे क्वेश्चन था हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, चाहे वो सेंटर और स्टेट के बीच में पीएसपी को लेकर, यहाँ पे सेंटर अगर कोई भी डायरेक्शन देती है स्टेट को, लेकिन स्टेट उसको डिसमिस करता है क्योंकि कोई नॉन कंप्लायंस है, कोई जरूरी नहीं है स्टेट माने. तो और ये हम स्टेट लेवल पे भी एक चीज देख सकते हैं, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में. तो सर आपका क्या मानना है, पे आप कुछ बता सके तो. The principle of state policy and the state and central conflict. State relation or fundamental directives central state relation है ये directives basically guide by union states this concurrently and if they have a relation with the fundamental rights and directives they are certainly going to be influenced by the central decisions and state decisions and as far as the legislation is concerned they are certainly going to influence according to their powers and their certification and the obligation of each other each of them. Yes, sir. Thank you, sir. Any other questions?
question or let us conclude the class. Sir, Akshay Jadhav has asked some question that राज्य सरकार के सभी प्रस्ताव राज्यपाल के लिए अनिवार्य है क्या? राज्य सरकार के सारे प्रस्ताव राज्यपाल के अनिवार्य हैं क्या? Sir, please explain it. There are certain proposals that are sent to the governors that the governor can send to the president or the approval of the president. So in that very case, not intended that president can give his approval for that very proposal. Yes, sir. Any other questions? Sir, someone has asked that Supreme Court कब तक basic structure को define करेगी? Supreme Court is actually the guardian of our constitution. So जब तक कब तक define करेगी? There is relation between the three organs of the government, that is legislature, executive and judiciary. There is independence as well as interdependence between these three organs, and their role is also defined. And what we say that कब तक define करेगी? So this depends between the relation between the judiciary and the executive and legislatures. What to say? ये जुडिशरी और लेजिस्लेचर के इस पे डिपेंड करता है कि क्या उसका this can be well explained by someone who has deep knowledge of सेफोलॉजी का जिसको अच्छा ज्ञान होगा वो इस पे ज्यादा अच्छे से प्रकाश डालेगा कि कब तक ऐसा होगा. Though I do not have any knowledge on the subject, but I would like to say that जो basic structure of Indian Constitution बना है वो एक तरह से कुछ बहुत ही मूल चीज़ों को, संविधान की बहुत मूल चीज़ों को सिक्योर करने के लिए बना है. और जहाँ तक मैंने पढ़ा है इस टॉपिक को, मेरे अनुसार उसमें जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को डिफाइन कर देते हो देन यू पुट एक लिमिट्स ऑन इट, राइट. जैसे आपने किसी भी चीज़ की डेफिनेशन दी तो इसका अर्थ आपने एक लिमिट लगा दी कि इस चीज़ के बाद अगर कोई वर्ड आता है तो आप उसका वायलेशन कर सकते हो. तो जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया है कि फेडरलिज्म को डाल दिया बेसिक स्ट्रक्चर में, सेक्युलरिज्म को डाल दिया एंड वेरियस अदर थिंग्स. तो इस तरह से वो क्या करेगी अगर आगे चलकर फ्यूचर में कभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट बहुत फंडामेंटल चीज़ का वायलेशन हो रहा है सोसाइटी में, देन सुप्रीम कोर्ट उसको रोकते हुए उस चीज़ को भी कह देगी कि ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, ताकि वो प्रोटेक्शन कर सके एक तरह से लोगों के अधिकार का और समाज में बढ़ते उपद्रव का या किसी भी चीज़ का. तो जानबूझकर जुडिशरी ने उसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया है बिकॉज डेफिनेशन पुट्स लिमिट्स ऑन थिंग्स. थैंक यू सर. एनी अदर क्वेश्चन? This needs the knowledge of law and political philosophy. Both the subjects needs to be understood in detail to give the answer of this very question. क्योंकि इसमें ऐसा है कि what is might is right. आप जानते हैं कि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहेगा या जो भी ये सरकार या लेजिस्लेटिव का क्या कि this all depends. You need to have a better understanding of political thought and the law. लॉ और पॉलिटिकल थॉट की कॉम्बिनेशन अगर आप डिटेल पढ़ेंगे तो इस बात पर अच्छे से समझ पाएंगे. Sir, you are right. Here I want to add something which this is really that as long as constitution remains a living document and there is a relevance rule on the country, then this will happen. Basically, doctrine will expand. Yes. This is my point of view on it. Yes. Thank you. Can I ask one question? Yes, definitely. जहाँ हमने सर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. तो सर जो हमारे डीपीएसपी है सर उसमें होता है कि बेसिकली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स है उन्होंने ये डिफाइन करा कि हम आगे जाके ये करना चाहते हैं अपने देश के लिए. तो सर डीपीएसपी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, हाउ बोथ ऑफ देम जस्टिफाइज ईच अदर?
देखिए लिविंग डॉक्यूमेंट का ये मतलब होता है कि विच कैन अडॉप्ट टू अडैप्ट टू द चेंजिंग सिचुएशन। लिविंग वही वो जिंदा वही रहता है जो समय के साथ बदल जाए। जैसे आप ये कहते हैं कि जो जैसे जो लाशें मर जाती हैं वो तैरती हैं, और जो जिंदा होते हैं वो तैरते हैं, जो लाशें होती है वो सतह पे तैरती है। मतलब जो अडैप्ट कर जाता है, जो समय के साथ चेंज कर जाता है, दैट इज लिविंग। तो लिविंग कहने का मतलब है कि वन हु इज एबल टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ये डीपीएसपी इज आल्सो it is changing with time। जैसे आप देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लीगल फ्रेमवर्क दिया गया 73rd and 74th times amendment of the constitution, so it has become a legal institution by the constitution। So DPSP is also changing and the constitution is also changing। There's certain amendments, अभी तक बहुत सारे amendments हुए, more than 103 और 104 amendments हो चुके हैं। तो it has been changing and adapting with the times। और जिंदा वही रहता है जो समय के साथ बदल जाए, समय की परिस्थितियों के साथ अडेप्ट कर जाए। तो इट इज चेंजिंग विद टाइम, और टाइम का जो डिमांड होता है उसके साथ चेंज जो कर जाए वही लिविंग होता है। तो डीपीएसपी इज आल्सो चेंजिंग, कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो चेंजिंग, बट द बेसिक स्ट्रक्चर शुड रिमेन कांस्टेंट। ये हमारे फोरफादर्स का कहना था, उन्होंने इस बात पे जोर दिया और ये फॉलो भी हो रहा है इन वर्ड्स। Okay, I like to contribute something to it. अभी लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन की बात उठाई है। देयर इज अ रिसेंट फील्ड ऑफ रिसर्च दैट इज इमर्जिंग, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंड्योरेबिलिटी, जो इसको जस्टिफाई करता है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी विटनेस टुडे इज नॉट जस्ट अ पार्चमेंट या फिर एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे सर ने भी बोला है that there is this Nobel laureate by the name of Prigogine, Ira Prigogine. She said that it's in a state of flux. So जो dynamic, जो thermodynamics के rules होते हैं वही आप constitution में भी लगा सकते हैं। और जैसे स्टेट ऑफ फ्लक्स में आपका एक थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है, उसी तरीके से अगर आप उसकी एनालिसिस लें, उसका दृष्टांत अगर आप अगर किसी भी संविधान में भी लागू करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटीज है, अडेप्टेबिलिटीज है, चेंजेस हैं, ये सारे के सारे एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन को टेस्टिफाई करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपने और इन डेप्थ में स्टडी करनी है, सो यू कुड रेफर टू दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ रिसर्च व्हिच इज वेरी मच इन डिमांड, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन साइंसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात होती है। तो आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you, ma'am. Sir, few students ask their questions in the chat box. Sir, अक्षय जाधव has asked, राज्यपाल नियुक्त एमएलए विधान परिषद के लिए मंत्रिमंडल सूचित चढ़ता है, तभी भी कुछ राज्यपाल इनका प्रस्ताव नहीं मानते, ऐसा क्यों है? एक बार फिर से दोहराइएगा। यस सर। एक बार फिर से दोहराइएगा। राज्यपाल नियुक्त एमएलए विधान परिषद के लिए राज्यपाल नियुक्त एमएलए विधान परिषद के लिए मंत्रिमंडल सूचित करता है, तभी भी कुछ राज्यपाल इनका प्रस्ताव नहीं मानते, ऐसा क्यों? देखिए इसमें बेसिक ये है कि पॉलिटिक्स को समझना, पॉलिटिक्स एक ऐसा साइंस है जिसको आप प्रैक्टिकली जब समझिएगा, जैसे जैसे आप ग्रो कीजिएगा, जैसे जैसे आप डे टू डे न्यूज़पेपर पढ़िएगा, तो ये आपका एनालिसिस और कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। जो पॉलिटिक्स आप पढ़ते हैं उसको एनालाइज तब करते हैं जब आप समय के साथ मैच्योर हो जाते हैं, या आपका रीडिंग और क्या कहते हैं उसका नॉलेज का डेप्थ बढ़ता जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। तो और एग्जांपल्स भी आपके सामने बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारा करप्शन, बहुत सारा नेक्सस, इसके बारे में जानकारी आपको समय के साथ और उम्र के साथ मिलती है। तो आज राज्यपाल ऐसा क्यों नहीं मानते? बेसिकली गवर्नर्स आर द ये representative of the union government, they are the representative of the union government, or there are certain power balances that dictates the governor। गवर्नर एक ऐसा पद है जो कि it has to work on the dictates of the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रसाद पर्यंत ही वो अपने पद पर बना रहता है। तो इस परिस्थिति में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको ऐसे समीकरणों को संभाल कर बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो it has to come from certain
पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड पॉलिटिकल इक्वेशंस, इन चीजों के दरमियान उसको क्यों नहीं लेता, क्यों उसको ये कहा है, इसके लिए बहुत सारी बातें होती हैं। तो इन सबको अलग अलग एग्जाम्पल अगर आप कहते तो उसके बारे में देखा जाता, बताया जाता। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं लेता, इसके बारे में एग्जाम्पल होता, बताइए तो उसके बारे में बताया जाए। तो जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, फर्दर एक्सप्लेन द क्वेश्चन विद द एग्जांपल, अगर आप सुन रहे हैं तो। महाराष्ट्र में यस यस अक्षय। अभी महाराष्ट्र में माननीय राज्यपाल ने विधिमंडळ प्रस्ताव को रोका है, वो विधान परिषद के एमएलए के। अच्छा, महाराष्ट्र। Maharashtra, I don't have the real picture in my mind about the Maharashtra, but if you read that real picture, because सेंटर में जो है बीजेपी गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में अभी किसी गवर्नमेंट है, उसको देखिए, उसके बाद पावर एनालिसिस कीजिए, पावर बैलेंस को देखिए, क्यों नहीं माना, because there are certain political equation which the government has to follow, उसको भी अपने पद पे बना रहना पड़ता है। पॉलिटिकल इक्वेशन क्या है वो देखिए। सेंटर में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? ठाकरे की सरकार है, ठाकरे की। तो इस तरह से पावर आपको उसको उस फ्रेमवर्क में एनालाइज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रहा था, और मैं अंजलि से आपसे भी कह रहा हूँ, देखिए जो डीपीएससी का मसला है, तो कोशिश कीजिए डीपीएससी पे ही सवाल आए, उसी इशू पे डिस्कस किया जाए। जी सर, जी सर। तो आप मॉडरेटर हैं, आप फिल्टर कर दीजिए। अगर आपको लगता है राष्ट्रपति सवाल पूछ रहा है तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। जी सर, क्योंकि हम लोग वर्कशॉप करें, उसमें प्रेसिडेंट होंगे, हम डिस्कस करें, हम क्या करते हैं कि एक इशू को ना जितना हम लोग ज्यादा वो कर सकें, पुल अप कर सकें, तो क्या होता है कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। तो आप फिल्टर करते हुए लीजिए, ठीक है? जी सर, जी सर। सर एक क्वेश्चन और है। देश कुमार ने पूछा है कि मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्व अलग अलग हैं, फिर क्यों टकराव होता है? इस पर आपकी क्या राय है? फिर क्यों टकराव होता है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों के बीच में? देखिए, मूल अधिकार और फंडामेंटल राइट्स और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन टकराव इस चीज को लेके होता है बिकॉज फंडामेंटल राइट्स का नेचर अलग है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का नेचर अलग है। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली पॉलिटिकल होता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बेसिकली सोशल एंड इकोनॉमिक इन ओरिएंटेशन। तो उसके लिए खास बात ये होती है कि इसको तो आप पॉलिटिकल से पॉलिटिकल ये आप इसको इन्फोर्स कर सकते हैं, कोर्ट में इसको जाके इसको लागू करवा सकते हैं, यू कैन अप्रोच द कोर्ट। लेकिन आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल यहाँ पे रिसोर्स की आवश्यकता होती है और ये इकोनॉमिक रिसोर्स के बिना इसको आप लागू नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिमांड द कोर्ट टू इन्फोर्स द फंडामेंटल ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें जो टकराहट की स्थिति डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आती है वो बेसिकली इसलिए आती है क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो ये उसका नेचर is that it is complementary and it is devised to create a welfare state और welfare state create करना इसका मोटो है और ये इंडिविजुअलिस्टिक है। ये फंडामेंटल राइट इंडिविजुअलिस्टिक है जबकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कम्युनिटेरियन है। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक और कम्युनिटेरियन में कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। तो दैट इज द रीजन। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है, वो कम्युनिटी वेलफेयर के लिए है, तो स्वाभाविक है कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। Yes sir, okay sir. Any other questions regarding the topic? हेलो हेलो। Yes Akshay, please speak louder. हाँ, अगर कोई सामान्य नागरिक न्यायालय में याचिका देगी तो उसे दंड भुगतना पड़ेगा, ऐसा क्यों? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अगर कोई सामान्य नागरिक सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करता है तब उसे दंड भुगतना पड़ता है। किस चीज की याचिका?
किसी भी जनहित याचिका। PIL हाँ नहीं, दंड क्यों भुगतना पड़ेगा? नहीं, वो याचिका लेने में नहीं बची तो क्लियरली बोलिए, क्लियरली बोलिए। PIL नेट में न्यायालय के नेट में नहीं बसी तो ये दंड भुगतना पड़ता है। कल 5G के बारे में जीवन चावला ने याचिका दाखिल की तो 20 लाख का दंड वो इसलिए भुगतना पड़ा क्योंकि Shame to your mind. लिंक शेयर कर दिया था पब्लिक डोमेन में, और पब्लिक डोमेन में लिंक शेयर करने के दौरान किसी शख्स ने उनके फिल्म जूही चावला के फिल्मों का गाना बजा दिया, जिससे बेंच की सुनवाई के दौरान मतलब एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, एक मतलब चॉस का सिचुएशन क्रिएट हो गया, जिस कारण उससे नाराज होकर और इसको इस बात का भी मामला बनाया गया कि ये अपनी व्यक्तिगत प्रसिद्धि के लिए जूही चावला ने ऐसा PIL दाखिल किया है, इस कारण से उनको ये जुर्माना लगाया गया। ऐसे PIL लगाने से तो मेरी जानकारी में कहीं कोई जुर्माना नहीं होता। लेकिन प्रसिद्धि कैसी हो सकती है? हमारा तो अधिकार है, भारतीय प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है न्यायालय में अधिकार मांगने का। सरकार के खिलाफ कोई गैर हो रहा है तो हमारा अधिकार है, न्यायालय प्रसिद्धि कैसे कर सकते? हाँ, तो अधिकार है तो आप पब्लिक डोमेन में अपने न्यायालय की सुनवाई का लिंक शेयर कर रहे हैं तो ठीक है, आप कर रहे हैं तो इसमें कहीं गलत नहीं है, लेकिन उसका खामियाजा कोर्ट की प्रक्रिया को भुगतना पड़ा, क्योंकि उससे असुविधा तो उत्पन्न हुई। और ये असुविधा क्यों उत्पन्न हुई, उसके पीछे मंशा कोर्ट ने यह कही कि इससे व्यक्तिगत प्रसिद्धि हासिल करने की मंशा थी जूही चावला की। व्यक्तिगत प्रसिद्धि हासिल करने की मंशा से उन्होंने उस कोर्ट की हियरिंग का लिंक